हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलएस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वो मेड रिगार्डिंग द वल्वल डेवलपमेंट ऑफ सी एलिगेंस। The six vulva precursor cells or the VPCs are influenced by the anchor cells to form a equivalence group. In the loss of function Lin12 mutants, both cells become uterine, whereas in the gain of function mutants, both becomes anchor cell. If the anchor cell is destroyed earlier in the development, all the six VPCs divide once and contribute towards the formation of hypodermal cells. The anchor cell's ventral uterine precursor decision is due to Notch delta mediated mechanism of the restricted adjacent cell fates. And last is the paracrine factors secreted by the anchor cells directly activates the Notch delta pathway. Which one of the following options represent a combination of correct statements? तो हमें कुछ ऐसी statements दी गई हैं और हमें combination of correct statements जो हैं वो mark करनी है. So the first statement is the six VPCs are influenced by the anchor cell to form an equivalence group. So this statement is true क्योंकि anchor cell जो है वो influence करता है हमारे VPCs को and वो VPCs जो है वो equivalence group form करते हैं. That means 6 के 6 VPCs vulva precursor cells जो हैं वो ability रखते हैं vulva formation करने की. So A statement is correct. Second statement is in the loss of function Lin12 mutants, both cells become uterine, whereas in gain of function mutants, both becomes anchor cell. So Lin12 जो है वो help करता है in the formation of uterine tissue and जो lag2 है वो help करता है in the formation of anchor cell. So अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए हमारे Lin12 में, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू एंकर सेल्स. एंड अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू यूट्रिन सेल्स. सो दिस statement is incorrect. Next statement is if the anchor cell is destroyed early in the development, all the six VPCs divide once and contribute towards the formation of hypodermal cells. So हम लोगों ने पहली स्टेटमेंट में यही देखा था कि एंकर सेल जो है वो इंड्यूस कर रहा है हमारे VPCs को. एंड अगर एंकर सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो VPCs जो है वो वल्वा फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे एंड दे विल डिवाइड एट वंस और ये फॉर्म कर देंगे सारे हाइपोडर्मल सेल्स को. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Now, next statement is the anchor cell or the ventral uterine precursor decision is due to Notch delta mediated mechanism of restricted adjacent cell fates. This statement is also true क्योंकि यहाँ पर जो है juxtacrine signaling या delta notch signaling जो है वो देखी जाती है. So हमारे यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा. So the correct statements are A, C and D. ई स्टेटमेंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं. द पैराक्राइन फैक्टर सिक्रेटेड बाय द एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट्स द डेल्टा नॉच पाथवे. सो दिस इज इनकरेक्ट. डेल्टा नॉच पाथवे को एक्टिवेट नहीं किया जाता है बाय पैराक्राइन फैक्टर्स. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिखकर भी दिया है कि जो Lin12 है इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूट्रिन टिश्यू. Lag2 जो है इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल्स. देयरफॉर लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Lin12 बोथ एंकर सेल्स बनाएंगे एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ Lin12 दोनों सेल्स जो है वो यूट्रिन टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे. इसलिए जो है हमारी जो स्टेटमेंट बी है इट इज इनकरेक्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements regarding limb regeneration in salamander is correct? So, first statement is a normal limb is regenerated after amputation irrespective of whether the cut was made below the elbow or through the humerus. It occurs by compensatory regeneration and does not include the formation of an apical ectodermal cap. So अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें, जो नॉर्मल लिम्ब रीजनरेशन है सैलेमेंडर में, कट अगर हम लोग डॉर्सल पार्ट में लगाएं या प्रॉक्सिमल पार्ट में लगाएं, कहीं पे भी लगाएंगे, एक नॉर्मल लिम्ब जो है वो रीजनरेट करेगी. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second statement is it occurs by compensatory regeneration and does not include formation of an apical ectodermal cap. This is an incorrect statement क्योंकि जो salamander में regeneration होती है, limb की regeneration होती है, it occurs via the epimorphosis process and इसमें formation होता है AEC और apical ectodermal cap का.
Third statement is regeneration occurs through the formation of blastema, which essentially consists of an unspecified multipotential progenitor cells. This statement is partially correct and partially incorrect क्योंकि regeneration जो है उसमें ब्लास्टिमा का formation तो होगा in case of salamander regeneration या salamander का जो limb regeneration है उसमें ब्लास्टिमा का formation होता है, लेकिन जो ब्लास्टिमा है it is not an unspecified multipotential progenitor cells. D is proliferation of the blastema cell does not require nerves or factors secreted by the nerves. This is also an incorrect statement क्योंकि वोंड एपिडर्मिस के बाद AEC और एपिकल एक्टोडर्मल कैप का फॉर्मेशन होता है जिसमें नर्व्स की प्रेजेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो हमारा जो आंसर है इसका वो होगा ए. ये एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक से मैंने एक इमेज ली है जहाँ पर इन्होंने एम्प्यूटेशन के बारे में बात की है. अगर हम लोग यहाँ लिम्ब देखें, चाहे वो डिस्टल एम्प्यूटेशन की जाए इस लिम्ब की या प्रॉक्सिमल एम्प्यूटेशन की जाए, एम्प्यूटेशन के बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग देख सकते हैं दोनों केसेस में जो है लिम्ब प्रॉपरली एक नॉर्मल वे से रीजेनरेट हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजेनरेशन. फर्स्ट, the type of regeneration characteristic of mammalian liver is considered as compensatory regeneration. Second is regrowth of hair shaft from follicular cells exemplifies stem cell mediated regeneration. Third is regeneration occurring through the repatterning of existing tissues with little new growth is known as morphollaxis. And fourth is adult structures undergoing dedifferentiation forming a blastema that then redifferentiates to form a lost structure is called epimorphosis. So choose the most appropriate combination of the correct statement. हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी देख लेंगे कि हर एक टाइप ऑफ रीजनरेशन जो है इनका मतलब क्या है. पहली टाइप ऑफ रीजनरेशन है हमारी स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन. स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन जो है इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लॉस्ट ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को रीजनरेट कर पाता है या रीस्टोर कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉलिकुलर स्टेम सेल्स इन दी हेयर बल्ज, they can renew hair shafts, and hematopoietic stem cells in the bone marrow can continuously replenish blood cells. सेकेंड टाइप ऑफ रीजनरेशन है एपीमॉर्फोसिस. एपीमॉर्फोसिस में क्या होगा, द एडल्ट स्ट्रक्चर्स इन सम स्पीशीज कैन डिफरेंशिएशन होगी टू जनरेट अ रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टिमा, एंड उसके बाद रीडिफ्रेंसिएशन होगी ताकि एक नया स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो सके. एंड इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एम्फीबियन लिम्स या सैलमेंडर. मॉर्फोलेक्सिस इट इज द रीपैटर्निंग, पैटर्न्स जो हैं सेल्स या टिश्यूज जो हैं एग्जिस्टिंग टिश्यूज हैं उनकी रीपैटर्निंग होना, एंड देयर इज अ लिटिल न्यू ग्रोथ. Such regeneration is seen in case of hydra. And compensatory regeneration, it is the type of regenerative growth that can take place in a number of human organs after the organs are either damaged, removed or cease to function, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारे लिवर के केस में. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द टाइप ऑफ रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन लिवर इज कंसिडर्ड एज कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second is regrowth of the hair shaft from the follicular cells exemplifies stem cell mediated regeneration. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो hair shaft है वो stem cell mediated regeneration करता है. So this is also correct. C is regeneration occurring through the repatterning of existing tissues with little new growth is known as morpholepsis. So मॉर्फोलेक्सिस में हमने देखा था रीपैटर्निंग हो रहा है हमारे एग्जिस्टिंग टिश्यूज का विद लिटिल न्यू ग्रोथ. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड लास्ट स्टेटमेंट इज एडल्ट स्ट्रक्चर्स अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन फॉर्मिंग अ ब्लास्टिमा that then redifferentiates to form the lost structure is called as epimorphosis. So this is also a correct statement क्योंकि जो adult structure है जहाँ पर dedifferentiation हो रहा है उसके बाद ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन हो रहा है एंड देन redifferentiation हो रही है तब हम उसे epimorphosis कहेंगे. So D is the correct answer जिसमें A, B, C and D चारों statements जो है वो correct है. So moving on to the next question, which is during the vulva development in the C. elegans, the anchor cells produces Lin3 protein which interacts with Let23 protein present on the 6 vulval precursor cells that form a equivalence group. The central lineage P6P adopts the primary fate, the adjacent
adjacent VPCs P5P and P7P adopt the secondary fate, and the rest VPCs adopt the tertiary fate. Few mutants that is mentioned in the column A and phenotypes that are mentioned in the column B are listed in the given table. सो कॉलम ए के बारे में अगर हम लोग पढ़ लें, फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन3, सेकंड इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन3 एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट23, थर्ड इज रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ लिन3 एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन3. सो अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो एंकर सेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है लिन3 को. लिन3 जो है वो बाइंड करता है लेट23, जो कि ये हमारे VPCs हैं, इनके सरफेस के ऊपर लेट23 जो है वो प्रेजेंट होते हैं. इसकी वजह से जो P6P है, जो हमारा सेंट्रल सेल है या सेंट्रल लीनिएज सेल है, उसका वो अडॉप्ट करता है प्राइमरी फेट को, एंड जो एडजेसेंट सेल्स हैं जो P5P एंड P7P है वो अडॉप्ट करेंगे सेकेंडरी फेट को, एंड यही सेल्स जो है फर्दर वल्वा का फॉर्मेशन करवाते हैं. एंड जो बाकी सेल्स है P3P, P4P, P8P जो है ये टर्शरी फेट को अडॉप्ट करते हैं. नाउ अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमारा लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन3 का, लिन3 जो है वो बाइंड कर रहा है लेट23 के साथ, एंड अगर लिन3 जो है अपना फंक्शन लूज कर जाए तो लेट23 के साथ बाइंडिंग नहीं होगी, तो जो सेल्स हमारे प्राइमरी फेट सेकेंडरी फेट गेन करने वाले थे वो गेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सारे VPCs जो हैं वो टर्शरी फेट की तरफ चले जाएंगे. सो इसका ऑप्शन जो है मैच कर रहा है हमारे फोर्थ ऑप्शन के साथ. तो हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन3 की वजह से क्या होगा, ऑल VPCs विल अडॉप्ट द टर्शरी फेट. सो ए में है P4, बी में है P4, सी में है P2 एंड डी में है P3. सो सी एंड डी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग. सो ए एंड बी ऑप्शन को अभी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे. सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारी लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन3 एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट23. सो अगर लिन3 अपना फंक्शन लूज कर दे लेकिन जो लेट23 है वो फंक्शन को गेन कर ले, राइट, दैट मीन्स लिन3 प्रेजेंट हो या ना हो, लेट23 जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा. अगर इसकी एक्टिवेशन रहेगी तो क्या होगा, मल्टी वल्वा का फॉर्मेशन होगा. जो VPCs हैं वो इक्विवेलेंट सेल्स हैं. सो अगर लेट23 हर एक VPCs के सरफेस पे प्रेजेंट है एंड एक्टिवेटेड है तो मल्टी वल्वा का फॉर्मेशन होगा. सो Q जो है वो मैच करेगा हमारे सेकेंड वाले के साथ, जो कि ऑप्शन ए में हम लोग देख सकते हैं. बट बाकी भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो थर्ड स्टेटमेंट है रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ लिन3. लिन3 का रिड्यूस्ड फंक्शन है, जो फंक्शन है वो कम हुआ है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिन3 जो है वो अपना फंक्शन कम कर देगा तो जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर पाएगा, लेकिन जो इसके बाकी सेल्स हैं, जो आगे पीछे वाले सेल्स हैं, उनके साथ इंटरैक्शन जो है वो नहीं पॉसिबल हो पाएगी, जिसकी वजह से P6P जो है वो प्राइमरी फेट अडॉप्ट कर पाएगा, एंड जो बाकी हैं वो अडॉप्ट कर लेंगे टर्शरी फेट, जो कि हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 3. P6P adopt primary fate and the rest VPCs adopt tertiary fate. लास्ट हमारा स्टेटमेंट है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन3. अगर लिन3 ओवर एक्सप्रेस कर जाएगा तो क्या होगा, अगर ओवर एक्सप्रेस करेगा तो वो P6P के साथ उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी से या इक्वली बाइंड करेगा जितना वो P5P एंड P7P के साथ बाइंड करेगा. सो हमारा यहाँ पर क्या होगा, P5P, P6P एंड P7P adopt primary fate, whereas P4P and P8P adopt the secondary fate, which is option number 1. So S will match with option number 1. तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा A. Next question है migration of individual cells from the surface into the embryo's interior is termed as. अगर आप लोगों ने मैंने शॉर्ट अपलोड की है इसी के ऊपर, जिसमें मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से डिफाइन करके बताया हुआ है, आप लोग उसे रेफ़र कर सकते हैं. माइग्रेशन है, माइग्रेशन अगर इंडिविजुअल सेल्स का हो रहा है उस प्रोसेस को हम इनग्रेशन कहते हैं. सो आंसर विल बी ए. तो इनवैजिनेशन की अगर हम बात करें, इनवैजिनेशन जो है वो है इनफोल्डिंग ऑफ द शीट्स ऑफ सेल्स. जैसे कि अगर हम एक सॉफ्ट रबर बॉल के अंदर पोक करेंगे तो वो उसके अंदर थोड़ा सा एंटर कर जाएगा या इनवैजिनेट करेगा या इनफोल्ड करेगा. बस उसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर देखें सेल्स जो हैं इस तरीके से इनफोल्ड हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे इनवैजिनेशन. इन्वोल्यूशन जो है इट इज़ द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपैंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड्स over the internal surface of the remaining external cells. इस तरीके से spreading होगी cells की on the internal side of the cells. Ingression, migration हो रहा है individual cells का from the surface of the embryos
इंटीरियर, हर एक इंडिविजुअल सेल्स जो है वो माइग्रेट करेगा। Delamination, it is the splitting of one cellular sheet into two or more less parallel sheets. जब सेल की शीट की स्प्लिटिंग होगी दो या दो से ज़्यादा लेयर्स में, तब हम उसे डीलैमिनेशन कहेंगे। एंड एक और हमारा टर्म जो होता है वो है एपिबोली, विच इज़ द मूवमेंट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स स्प्रेडिंग एज अ यूनिट rather than individually to enclose deeper layer of the embryo. एक यूनिट की तरह स्प्रेडिंग होगी rather than individual cells. So यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is, in C. elegans, an anchor cell and a few hypodermal cells take part in formation of vulva. The experiments performed to understand the role of these cells in vulva formation and the results obtained are as follows. If the anchor cell is killed by laser beam, hypodermal cells do not participate in the vulva formation and no vulva develops. So C. elegans के anchor cell में और जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा। तो उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं एंड उनके रिजल्ट्स जो हैं वो ये 3 रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है कि उन्होंने कहा है कि अगर एंकर सेल्स को किल कर दिया जाए लेज़र बीम के साथ, तो सिर्फ हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं वो हाइपोडर्मल सेल्स जो है वो डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी वल्वा फॉर्मेशन एंड नो वल्वा डेवलप्स। जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो वल्वा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स closely located with anchor cells called vulva precursor cells are killed, no vulva develops. जो 6 hypodermal cells हैं जिनको हम VPCs कहते हैं, अगर उन्हें किल कर दिया जाए तो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड इज, इफ द 3 सेंट्रल वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, जो हमारे सेंट्रल प्रिकर्सर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, द आउटर 3 cells will normally develops hypodermis take the fate of the vulva cells instead. जो अगर सेंट्रल के 3 सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो बाकी के 3 सेल्स बचते हैं, 6 जो हमारे VPCs में से 3 सेल्स जो बचेंगे वो उनका फेट जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे। सो ये 3 हमें कह सकते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं एंड इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है एंकर सेल एक्ट एज एन इंड्यूसर। तो पहली स्टेटमेंट थी अगर एंकर सेल को किल कर दिया जाए तो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि एंकर सेल जो है वो इट विल एक्ट एज एन इंड्यूसर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि हमारे ए एंड बी में है। सो सी एंड डी जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। अब हम लोग ए एंड बी के को ही देखकर चलेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है 6 हाइपोडर्मल सेल्स विद द पोटेंशियलिटी टू फॉर्म वल्वा फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। सो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट हमें दी है, अगर 6 हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो उनको किल कर दिया जाए तो वल्वा जो है वो डेवलप नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, जो कि है 6 हाइपोडर्मल सेल्स, जो हमारे 6 हाइपोडर्मल सेल्स हैं उनके पास इक्वल पोटेंशियल है टू फॉर्म वल्वा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी स्टेटमेंट आती है 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन में कहा गया है कि अगर सेंट्रल 3 वल्वल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो बाकी 3 सेल्स हैं वो उनकी जगह ले लेंगे। सो जो सेंट्रल सेल है जो 3 सेल्स हैं आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल्स वही वल्वा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ए, बी एंड सी दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेकिन जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं हम उसको भी देख लेते हैं एक बारी। द सेंट्रल सेल फंक्शन एज द प्राइमरी सेल एंड द 2 cells on the both side act as a secondary cells. लास्ट स्टेटमेंट है द प्राइमरी सेल सिक्रीट्स अ शॉर्ट रेंज जक्साक्राइन सिग्नल। सो जो डी एंड ई स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने अपने अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने ए, बी एंड सी को इसलिए चूज किया क्योंकि हम लोगों को इन 5 स्टेटमेंट में से करेक्ट चूज करना था अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। सो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ए, बी एंड सी जो है वो करेक्ट है। डी एंड ई जो है हम लोग इसीलिए चूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई है। सो स्टेटमेंट ए, बी, सी आर करेक्ट। सो आंसर विल बी ए। सो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। मैं एक और सेशन ऐसा लाऊंगी जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप लोग जो है कॉन्सेप्ट्स के लिए
जो मेरी बाकी वीडियोज़ हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं एंड आपको बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएँगे। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।